Hi guys, welcome to the Gen D podcast where D stands for dumber. So basically in this podcast we discuss everything what Gen Zs are doing nowadays where they're making themselves dumber and dumber day by day. A place that has no filters, the only thing we bring to this table are vibes. My name is Nikhat Arif and I'm going to introduce you to my co-host Alishba. Hi Alishba. Hello. Hi guys, I am Alishba and I'm going to introduce you to our guest, Sharaj, who is a member of his own band, Kamil, and he says he communicates through music. So, hello Sharaj, how are you? Hello, I'm good. How are you guys? We're good. Okay, so first question. How much of a Gen Z are you? Like rate it out of on a scale of 10, 1 to 10. Yeah, I think I might be a good 7. That's pretty much how I would rate it. A 7 sounds nice. अच्छा तो कुछ एग्जांपल्स दो कि क्या करते हो ऐसी चीज़ें कुछ जेनजी कोडेड चीज़ें करते हो जिससे लगता है कि हाँ मैं जेनजी हूँ लेकिन फिर कहीं जो वो 3 पॉइंट्स कट किए हैं तो कहीं कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो लगता है कि नहीं मैं नहीं हूँ. यार आई थिंक व्हेन इट कम्स टू जेन जी हम लोग की वो जो एक स्लैंग वाला पूरा एरिया है आई थिंक आई हैव क्रैक्ड द कोड प्रीटी मच सही है लेकिन देन देर आर एज यू गाइस सेड इट्स गेटिंग डमर एंड डमर एवरी डे आई हेट द टिकटॉक कॉन्सेप्ट ऑलराइट I mean it doesn't really sound very intriguing to me. I mean, look at me, yaar. How would a guy like this look if he's, just going, where they don't know? That's just, this sounds like a menace at this point. But yeah, I think वो जो 3 points कट रहे हैं मेरे वो सारे videography और वो सारी चीज़ें उसमें कट रहे हैं मेरे और थोड़े से मुझे वो डेलुलू इज़ द ट्रूलुलू वो समझ नहीं आता थोड़ा सा दिमाग ख़राब होता है मेरा उससे. That's pretty much it, yes. अच्छा ठीक है. तो अच्छा अब हम लोग अपने मेन पॉडकास्ट के पास आते हैं. तो डू यू थिंक कि लाइक द मॉडर्न टेक्सटिंग कल्चर जो है हमारा जेंजी का उससे जो रिलेशनशिप्स हैं हमारी और जो हमारी फ्रेंडशिप्स हैं इज़ दैट कल्चर हेल्पिंग अस एंड लाइक बेटर हो रहा है या उसकी वजह से चीज़ें और वर्स हो रही हैं? Yeah, I'm gonna say it's actually subjective to opinion. Why is that so? Because हर किसी का अपना एक point of preference है, right? Just for example, when it comes to me, I'm someone who can't really hold on to texts. सही है. I can't really do texting all day long. सही है. And when it comes to, let's just say, relationships at this point, or even friendships, right? I can't be someone जो कि पूरे दिन available हो at text, right? तो वो एक पूरा text पे reliance जो है, that is something that I feel like could be, just could be deteriorating. But I am someone just who really believes in physical communication, right? Just for example, I couldn't have done this on text. So yeah, a lot of people, go for interviews or a lot of things like that via text, via voice notes or something like that. I can't do that. So yeah, but on the other hand, there are 1,000 other people who actually believe कि हाँ, like there are certain relationships जो सिर्फ digitally चल रहे हैं, which I really much underappreciate, all right, and I really much dislike. But again, that's subjective to opinion. So in my opinion, if you're going to have my opinion on that, so I think it's okay. I mean, at this point आप कुछ कर नहीं सकते उस बारे में. तो यहाँ पर जैसे हम अच्छा जो हमारी मेजॉरिटी जेंजी रिलेशनशिप्स हैं वो एक्चुअली दे आर मोर लाइक वो टेक्स्ट वाले उस पर लाइक आई एम श्योर लाइक पीपल जो लाइक जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं बट लाइक टेक्स्ट पे दे कि ओ यू आर मोर कंफर्टेबल बट व्हेन इट कम्स टू फेस तो वो बिल्कुल ही ना मतलब एक अलग ही वो चल रहा होता है. तो उसके बारे में डू यू थिंक कि एट दिस पॉइंट हमारी जेंजी रिलेशनशिप्स ज़्यादा पूरा लाइक ये टेक्स्ट बेस्ड जो हैं इज़ दैट लाइक वेरी अनहेल्दी फॉर अस लाइक फॉर people? It is, yeah. I mean, why not? See, let's just say we're creating a hypothetical scenario. Okay, there are 2 people who are dating, right? You guys are dating for fun. Is that just the point? Because I don't think that's gonna be the point for long, right? I mean, I get people date, people get like they fall in love with each other. That can happen through text because obviously infatuation ऐसे ही होती है. But the point is कि if you're dating someone, think about it as a mature person, right? Being a Gen Z is not just कि ओ हम सिर्फ तफरियाँ करते हैं और हमारी लाइफ में इतना कुछ happening है. At one point, everyone needs to settle, right? And if I'm gonna date, I'm gonna date just to settle. So if I'm not comfortable with the person that I want to marry or end up with, like if I can't be comfortable meeting with them, then what's the damn point? I mean,
टेक्स्ट पे तो यार मैं किसी से भी बात कर लूँ. I could talk, like I'm in my 20s, right? I could be talking to a 50-year-old person. I could grow infatuation for them. So what's the point? डू यू थिंक कि बिकॉज हम लोग टेक्स्ट पे इतनी लाइक यू नो ऐसे बात वगैरह करते हैं, तो जब फेस टू फेस बात करने पे आती है तो जो जैसे सीरियस कॉन्वर्सेशन होती हैं, टफ कॉन्वर्सेशन होती हैं, वो हम नहीं कर पाते. डू यू थिंक लाइक दैट इज़ वन रीज़न, लाइक जो टेक्सटिंग वाला पूरा है कि Yeah, हम लोग that- टेक्स्ट पे कम्युनिकेट करते हैं, तो इन पर्सन ये टफ कॉन्वर्सेशन नहीं होती हैं, इसकी वजह से इतना पूरा अनहेल्दी वो चल रहा है. I feel like that proves my point, right? कि if you're not comfortable, यानी अगर आप कह रहे हो कि हाँ यार मैं डिजिटली या फिर वाया टेक्स्ट ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, उसके बावजूद you are not able to produce a conversation that holds importance in your relationship. And mind you, I'm not talking about dating scenarios only, right? At this point, I'm talking about friendships. I'm even talking about certain communications जो कि आप अपने parents से भी करते हो, right? That is not the only option that you should have. अगर कोई important चीज़ है, sit face to face and sort it out, all right? There's always room for communication. There's always room for betterment. So, in my opinion, in my subjective opinion, it's just going to be about the fact that yaar, being physically present in front of someone helps you gather a lot of emotions, helps you gather a lot of sympathy, all right, and for the other person, and that helps you out. Texting does not. Kyunki at certain points, and actually not at certain points, almost har din, मैं अगर किसी को वेयर आर यू कैप्स लॉक में लिख दूंगा तो वो गुस्से में हो जाएगा, और अगर मैं स्मॉल में लिख दूंगा तो वो अच्छे से हो जाएगा. मैं यही कहने वाली थी कि मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है इस तरह के. वो एक है ना जो आप देखो तो ओके लिखा हुआ है, तो बंदे ने ओके लिखा है और लड़की ने लिया ओके, तो वो वाली चीज़ बहुत होती है. I get you. ये है ना, देखें, और ये सारी खुराफात भी हमने क्रिएट की है. सही है. इसमें किसी ने आके हम लोग को भाई माजरत के साथ, नो वन टोल्ड अस कि अ कैपिटल ओके और अ टू वर्ड ओके इज सपोज्ड टू बी एंग्री. हाँ, सही है. फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड, आई डोंट लाइक टेक्स्ट, राइट? कोई मुझे अगर कुछ बात बोलता है, ऑल आई डू इज जस्ट राइट अच्छा ओके, दैट्स इट. दैट्स लिटरली माई पॉइंट ऑफ टेक्सटिंग. सही है. इट्स जस्ट टू पुट इट आउट देयर, हाँ मेरे पास है यार, मैं कर सकता हूँ, इतना तो आता है मुझे. दैट्स जस्ट इट. वरना मैं अगर कैप्स लॉक में लिख दूंगा तो क्या मतलब मुझे गुस्सा आ रहा है? लेकिन इसको लिया तो ऐसे लिया जाता जाता है. आपके साथ भी हुआ होगा कभी, आपने लिखा Definitely, होगा. yeah, हाँ. definitely. I've been through this, like hundreds of times. I don't think कि मैं इसको और ज़्यादा इस पे और एम्फेसिस डाल सकता हूँ. I literally mentioned this कि यार ओके लिखने से इतना कैसे फ़र्क पड़ सकता है, और अगर उसके साथ मैं क्राइंग इमोजी डाल दूँ तो वो फनी हो जाएगा. I'm sorry यार, that's menace. अच्छा शाहराज, व्हाट्स योर टेक ऑन सिचुएशनशिप्स जो आजकल बड़ी चल रही है कि ऑलमोस्ट रिलेशनशिप बट देयर इज नॉट अ लेबल ऑन इट, तो यार आई मीन ठीक है, मैं क्या कहूँ, मैं ट्रिगर कहूँ क्या? नहीं यार देखो, इट्स एज ईजी एज दैट कि इफ़ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, व्हाई इवन ट्राई टू डू इट. सही है. अगर मुझे पता है कि आई एम नॉट इमोशनली अवेलेबल राइट नाउ, मुझे पता है मेरे 100 झंझाल हैं सर पे कि मुझे काम करना है, मुझे आई हैव टू वर्क माई एस ऑफ एंड द नाइट, एंड देन आई हैव टू स्टडी इन द मॉर्निंग, इवनिंग में आई हैव टू डू समथिंग एल्स. So why even get into it, right? I mean, obviously, let's just say there's person A, I like her, all right? But मैं क्यों उस बंदी की ज़िंदगी ख़राब करूँ यार? I mean, obviously, it might be कि she's even not looking for relationships, but why? आपको या फिर तो इतनी अगर आपको desperation है, I mean, I'm not saying desperation in a negative way. I get why people are desperate, all right? I can be desperate as well. You can be desperate as well. Anyone in this room can be desperate. सही है. It's just you grow infatuation, you grow affection, and that is something everyone needs. And that's just about it. So situationships वाला concept मेरी नज़र में ऐसा यार, if you guys are at a mutual consent कि हाँ this is just for fun, all right, because I am not a very fond believer of the fact कि यार आगे जाके देखेंगे, because that doesn't do shit. I'm sorry. All right. If you guys are at a mutual consent कि हाँ भाई we're doing this for fun, all right, then okay, go for it. सही है. एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं किसी को जज कर ही नहीं सकता, बिकॉज द काइंड ऑफ शिट दैट इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी, आई एम सॉरी टू से दैट इज समथिंग आई कैंट कॉम्प्रिहेंड. डू यू थिंक सिचुएशनशिप्स लीड टू रिलेशनशिप्स? नो, नॉट एट ऑल, नेवर. ओके, आपने इमोशनली अनअवेलेबल वाली बात की, सही है. तो व्हाई डू यू थिंक कि हमारी जनरेशन में व्हाई आर वी लाइक दिस, लाइक व्हाई डू हम लोग, हमारा एक हुआ है कि आई कांट डू फीलिंग्स, आई कांट मैं नहीं कर सकती, क्यों, लाइक क्यों है हमारी? यार if you're asking this from a person like me who is actually emotionally unavailable because of the fact कि
उसके पास पूरा एक ऐसा रह चुका है. सो आई एम गोना टेल यू कि हर बंदा ना शुरू से एक पॉइंट पे इमोशनली अनअवेलेबल होता है, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ बैकग्राउंड्स वी कम फ्रॉम. ऑलराइट, अनटिल अनलेस आपकी फैमिली ने आपको सिखाया है कि बेटा बात कैसे करनी है, सही है, जो कि हमारे यहाँ आई एम वेरी ओपन टू से ऐसा नहीं होता. सही है, वी आर नॉट टोल्ड हाउ टू कम्युनिकेट. ऑलराइट, मैं अपने बचपन से लेके आज तक अपने अब्बा से ये नहीं बोल सकता अब्बा आई लव यू. इट्स जस्ट दैट, राइट, इट्स ट्रू. तो बीइंग इमोशनली अनअवेलेबल इट इज़ समथिंग दैट जो कि हम लोग को विरासत में मिली है. सही है, अपने सोसाइटी से, अपने कल्चर से, सब कॉन्टिनेंटल कल्चर जो है उससे मिली है हम लोग को. तो दैट इज़ दैट. लेकिन आई थिंक एट वन पॉइंट जो नहीं भी होता ना, हमारे अब पूरे रिलेशनशिप स्टैचर में ब्रेकअप्स और ये वाली चीज़ इतनी नॉर्मल हो गई है कि अब इमोशनली अनअवेलेबल होना सबके लिए बहुत एक नॉर्मल सी चीज़ बन गई है, विच इज़ रॉन्ग, विच शुड नॉट बी द केस. सो दैट्स दैट कि अगर मैं अपने उससे भी बताऊँ तो आई हैव बिन थ्रू टन्स ऑफ थिंग्स due to which I landed at that point, and then I stopped doing that just so that I could be better. So one should realize कि यार मैं अगर ये dating और situationships वाले चीज़ को थोड़ी देर छोड़ दूँ ना पीछे, so it is gonna help you out actually at one point, and that's what I did and it did help. So at this point I can say हाँ यार मैं उतना emotionally unavailable नहीं हूँ. I think I can give more attention to people, give more attention to someone I like. So yeah, that's just pretty much about it. Give time to yourself and then give time to others. अच्छा, तो शाराज, हमारी जनरेशन में, जेन जीज़ में एक कांस्टेंट वैलिडेशन की बहुत एक चीज़ है कि अगर उसने मुझे 20 सेकंड्स में रिप्लाई किया है तो इसका मतलब है कि उसको मेरी बहुत फ़िक्र है, ही केयर्स अबाउट मी, आई फील वेरी सिक्योर और सब. लेकिन अगर वो 20 से 21 सेकंड हो गए तो भाई उसको तो मेरी कोई फ़िक्र ही नहीं है और उसको कलेश होगा. हाँ, कलेश तो पक्का है फिर. तो उसके बारे में आपका क्या, व्हाट्स योर टेक? यार देखो, माई पॉइंट ऑन दैट इज़ के अगेन कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, ये सारा जो भसड़ मचा हुआ है ना एक टेक्सटिंग का इशू है. सो इफ़ आई एम टेक्सटिंग समवन एंड इफ़ आई डोंट रिप्लाई विद इन अ मिनट, सो दैट मीन्स आई एम नॉट अटेंटिव. एंड हाउ डज दैट प्रूव कि आई एम नॉट अटेंटिव? एंड अगर उसने मुझे 8 रील भेजी हैं तो मैं 8 के 8 का रिप्लाई करूँ. सही है. सो यार क्या डिसग्रेस है ये. सही है, इट्स नॉट राइट. सही है. लेकिन देखो, अगर एक वो है कि वी हैव आवर फोन्स 24/7 अपने हाथ में, तो मतलब अगर आपने मैसेज, मतलब ऐसा बहुत स्लाइट चांस है कि आपने ना देखा, इट्स मोर लाइक अच्छा आपने देखा और आपने कहा ओ मैं बाद में कर दूंगा रिप्लाई या कुछ. तो वो जो थोड़ी सी शिकायत वाला फैक्टर है वो कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि हम कोई कदीम ज़माने में तो रह नहीं रहे कि वो ख़त लिखते थे तो हमें समझूं कि ख़त के 20 दिन रिप्लाई नहीं आया तो मैं कहूँ कोई बात नहीं, देखा नहीं होगा, पहुँचा नहीं होगा कबूतर मेरा. लेकिन अब तो हर वक्त फ़ोन हाथ में, मतलब यार टू प्रूव दैट पॉइंट, मैं अभी 15 मिनट से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैंने कितनी दफ़ा फ़ोन देख लिया अपना. सो लेट्स जस्ट प्रिटेंड आई एम डेटिंग समवन, उसने मुझे 15 मिनट पहले मैसेज किया था, मैंने तो नहीं देखा फ़ोन अभी तक. तो आपको उसको पॉडकास्ट में बैठने से पहले बताना चाहिए था कि आई एम गोइंग टू बी इन अ पॉडकास्ट एंड आई वोंट बी एबल टू रिप्लाई यू फॉर 30 मिनट्स. करने के बाद भी तो उसको बता सकता हूँ. आई मीन आई वुडंट माइंड. अगर फॉर एग्जांपल इफ आई हैव अ गर्लफ्रेंड एंड शी इज़ लाइक शी जस्ट रैंडमली वेंट विद हर सिस्टर कि मैं खाना खाने जा रही हूँ, सही है भाई, उसकी बहन है, मैं उसके घर पे थोड़ी रहता हूँ. अच्छा, तो बट आई फील लाइक कि अगर वो दोनों एंड से ये चीज़ है ना कि अच्छा दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा नहीं बताया, या फिर वही बहन, आपने जो बोला कि बहन के साथ चली गई खाने पे, तो ठीक है. और अगर लड़की की तरफ से भी है तो ठीक है. लेकिन अगर ये एक तरफ से है तो थोड़ी फिर ऑफ बात होने लग जाती है. हाँ देखें, इन दैट केस इट कम्स टू रेसिप्रोकेशन. ट्रू. कि अगर एक बंदा रेसिप्रोकेट ही नहीं कर रहा और उसके बाद ये हरकतें भी कर रहा है, सो दैट्स प्रॉब्लमैटिक, राइट. लेकिन अगर वो जनरली रेसिप्रोकेटिव है, सही है, और उसके बाद ऐसी कोई सिचुएशन हो रही है, तो फिर आई थिंक दूसरे बंदे को भी इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वो चीज़ समझ सके कि हाँ यार दिस मस्ट बी समथिंग जो कि शायद बता ना पाया हो या बता ना पाई हो. सो दैट्स इट. आई थिंक हमारी जनरेशन में एक्सपेक्टेशंस का बहुत मसला है. लाइक हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप्स बट इवन लाइक फ्रेंडशिप्स और सब पे, कि आपने टेक्स्ट किया तो आप फ़ोन रिप्लाई करो. मतलब यू नो लाइक दिस इज़ लाइक दूसरा बंदा आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. तो दिस आई फील लाइक डोंट यू फील कि दिस इज़ लाइक वेरी अनहेल्दी? बिकॉज पर्सनली आई एम अ वेरी बैड टेक्स्टर. मैं टेक्स्ट देखती हूँ, मैं भूल जाती हूँ. मैं मतलब यू नो इवन लाइक माई फ्रेंड्स गेट ऑफेंडेड कि आप जो है वो मतलब आप मैसेज देख लेती हो, आप जवाब नहीं देती. तो दिस इज़ लाइक अ थिंग. सो डोंट यू थिंक कि वो एक्सपेक्टेशन वाली बात इज़ वेरी अनहेल्दी? यार इट इज़. देखें, आई सेड दिस बिफोर एज वेल, हमारी हालतें नहीं हैं, सही है.
हम लोग बहुत बुरे हैं, हम लोग लाइक जनरली, मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम लोग बहुत बेकार के लोग हैं, सही है। खुद देखें ना, दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन एट दिस पॉइंट विच शुड नॉट बी, सही है। इस पर पूरी एक पॉडकास्ट बन रही है, सही है। वाई इज़ दैट सो? क्योंकि ये हम लोग के अंदर इश्यूज़ हैं ये वाले। वी आर इन जनरल वेरी टॉक्सिक पार्टनर्स, सही है। उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि देखें, आई एम नॉट गोना लाई, मेरे ऊपर भी ये बात आएगी ना तो मैं शायद मुंह में मिट्ठू बहुत बनूं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे बहुत सारे रेड फ्लैग्स होंगे बिला वजह के, सही है। रेड फ्लैग मेंशन, लेट्स गो। लेकिन पॉइंट इज़ कि हाँ, अनहेल्दी है, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट सैडली इट्स दी सैड रियलिटी ऑफ लाइफ एट दिस पॉइंट। तो क्या कह सकते हैं उस बात। Okay, so what is your take on dry texting? And like, do you think that is like a very big like turn off हर चीज़ में, like friendship relationship दोनों में, कि मतलब आप dry text करें तो बस ख़त्म? हाँ हाँ, बहुत। लाइक इफ़ आई एम ट्राइंग टू टॉक टू समवन और वो ड्राई टेक्सटिंग कर रहा है, उसके लिए वो शायद एटीट्यूड हो, या फिर ओ इसको मैं अच्छी लगती हूँ, इसको मैं टेक्स्ट नहीं करूँगी, दैट्स जस्ट ऑफ, सही है। क्योंकि आप इन जनरल अगर आप किसी को पसंद हो, आप ऑटोमेटिकली अपने आप को डिसलाइक करवा रही हो या करवा रहे हो, सही है। ये कह के कि ओ मैं इसको 1 घंटे बाद रिप्लाई करूँगी या फिर इसका मैसेज छोड़ दूँगी, ये मुझे खुद मैसेज करेगा। नहीं भाई, मैं तो नहीं करता, बाढ़ में जाओ आप, क्या करना है, 100 लोग और हैं मेरे पास, मैं कर लूँगा उनसे बात, सही है। आई मीन फिर वही बात ना, यू सी निगेट्स रिएक्शन, बट इन जनरल हम सब ये करते हैं, सही है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, सही है। मुझसे अगर कोई बात करने आएगा, लेट इट बी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट देयर जेंडर इज़, सही है। इट कुड बी अ मेल, इट कुड बी अ फीमेल। यार मैं अगर किसी को रिप्लाई करके उसकी एटलीस्ट अगर वो कोई बात करना चाह रहा है, इफ़ आई गेट टू बी एट दैट पॉइंट, इसमें बुराई क्या है? वो मुझे आई लव यू शादी कर लो मुझसे थोड़ी बोल रही है या बोल रहा है, सही है। अगर वो सिचुएशन आएगी तो ठीक है, वरना मसला ये है ना, फिर वही कम्युनिकेशन बैरियर इतना है, हम लोग के लिए बात करना इतना मुश्किल है। फॉर एग्जांपल, अगर लेट्स से मैं हूँ, मैं डेट कर रहा हूँ किसी को, कोई लड़की मुझसे आके बोल देती है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल होगा ये बात उसको बताना कि मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। क्यों भाई? आप बोल दो डेट कर रहा हूँ, नहीं ऐसी सिचुएशन से पहले पहले अगर कुछ है, इफ़ यू जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स देन बी फ्रेंड्स, दैट्स इट। और लाजमी नहीं है कि आपकी हर किसी से दोस्ती हो यार। आई कुड बी टॉकिंग टू यू एंड दैट्स नॉट गोना बी फ्रेंडशिप एज वेल। मैं तुम्हें एक बहुत अनसर्टन रैंडम टेक्स्ट कर सकता हूँ, यू कुड रैंडमली टेक्स्ट मी फॉर वर्क एंड दैट्स इट। So yeah, we could be work buddies or something of that sort. So that's how it goes. So dry texting, over and over, off. अच्छा गाइज, आई थिंक वी शुड डू अ रैपिड फायर राउंड, जिसमें मैं ना बहुत बहुत कोई जो कॉमन जेन जी कम्युनिकेशन टर्म्स हैं वो पूछूंगी, और फिर आपने शाराज बताना है। अगर आपको नहीं पता होगा फिर अलिश आप बताना, ठीक है? और फिर दोनों को नहीं पता होगा तो फिर मैं बता दूंगी, ठीक है? अच्छा, फर्स्ट मैं 7 on 10 वाला पॉइंट प्रूव कर स्टार्टिंग ऑफ इजी, गोस्टिंग। इट लिटरली सेज व्हाट इट इज। गोस्ट कर देना किसी को। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, अचानक से मैं गायब हो गया। Okay. Just going MIA, I guess. Yeah, good. Breadcrumbing. Yeah. Breadcrumbing. I'm sorry, मुझे नहीं पता है क्या है। Okay, basically giving थोड़ी सी attention and then go back to हाय go. हाय, क्या बकवास है। सही है, ओके। Okay. अच्छा चलो सही है, मैं नहीं बोलता पॉडकास्ट पे वो चीज़। Situationship. Not putting labels and being affectionate with each other. Love bombing. प्यार से फाड़ देना एक दूसरे को। मैं अगर किसी को बहुत सारा प्यार दे रहा हूँ तो दैट इज लव बॉम्बिंग। Yeah. give them too much love एक बार में, like उनको बहुत ज़्यादा आप लव, like बहुत ज़्यादा उनको आप वो कर दो कि ना, मतलब वो आपसे वो like हाँ, you मैं give them तो- so much love के लेकिन वो थोड़ी सी manipulation भी आ जाती है। yeah. अच्छा, अगर मैनिपुलेशन वाला पार्ट हटा दो तो मैं तो टाइट लव बॉम्बर हूँ। क्या? अरे ठीक है, हो सकता है, चलो थोड़ी सी एक सॉल्ट उसका डाल दो मैनिपुलेशन का वो। Okay. अच्छा, hard थोड़ी one. सी। Orbiting. यार मैं क्विट कर रहा हूँ ये गेम, मुझे नहीं पता और क्या है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता था किसी तो का मैंने गोल चक्कर सर्च लगाना। किया। क्या करते हैं, तवाफ करते हैं उस बंदे बंदी के। अरे ऑर्बिटिंग Orbiting is basically still engaging with someone's social media, likes, views, stories after ghosting them. I mean that is very common. ओ ये तो बुलशिट मूव है, इसको तो बुलशिट मूव कहते हैं। लेकिन इसका थोड़ा तमीज़ वाला नाम ऑर्बिटिंग है। ड्राई टेक्सटिंग, ये तो पता है। ड्राई टेक्सटिंग, ड्राई टेक्सटिंग तो वही होती है ना, आई गेस। हाँ, like when you are giving हाँ, Chat ओके, advertising. लॉल, और बस ऐसे करके ख़त्म हो। ओके, नेक्स्ट टर्म, स्लाइडिंग इनटू डीएम्स। स्लाइडिंग इनटू डीएम्स, यार किस यानी
just story reply and all of that stuff is sliding into DMs, right? Yeah. ठीक है. Works वैसे. अच्छा, Have you? but like, oh, okay, I mean, अच्छा, I have, I mean, okay, yes, but women never do that, so it is not applicable for women. वैसे true, मैंने नहीं देखा कि बहुत कोई लड़कियों को. हाँ, and that is wrong. क्यों? क्या मिलेगा इतना एटीट्यूड में आके आपको? नहीं एटीट्यूड नहीं, मतलब इट्स अ गाय थिंग ना, आप लोग करो. Not a guy thing. It is a general thing. मेरे बल्कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा. बोलो बोलो कोई बात. Yes. There's this image that I have. All right, it's a slide into DM card. All right. So तो आप वो भेज देते हो. if very humoristically I have to slide into a DM, I send that card, and that card has written over it, slide into DM card. There's a kid that is going over a slide, and उसके नीचे description में लिखा हुआ है, you know how वो Pokemon cards चलते थे, it's like that. Alright, और उसके नीचे लिखा हुआ है, slide into DM card, person A will send this to person B and slide into their DMs, and person B has to reply to this with no context. So that is That's so always thoughtful. works. Always works. यार कितना क्रिएटिव है ये. दूसरी भी एक और चीज भी है, वो भी राइट है. That's an Instagram post which says, so are we gonna keep seeing each other's stories or do you want to talk? और आप मतलब ये भेज देते हो. Yeah, I did this with someone, और हाँ. and yeah, it did work. Kind of worked pretty good. Riz level जो ना हार देता है इसमें. और वैसे भी girls like funny men, so हाँ गुड ह्यूमर तो. yeah. हाँ, there is a reason why इस शक्ल के साथ I can talk to a lot of people. I am an ugly brat, man. I mean, all I can do is talk. That's it. अच्छा हम मेरा नेक्स्ट वर्ड रिज ही था जो आपने आई थिंक बता ही दिया हाँ, इसमें. riz अच्छा level. सिंपिंग. Me. Hello guys. Simp here. लेकिन मैं sympathy हूँ. Like, I mean, simp and pati. Pati, हाँ, It's got a it. very good joke. What do you call a husband जो के अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हो? Sympathy. अच्छा हार्ड लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च. Soft launch तो होता है ना किसी को publicly दिखा देना. Like for example, अगर कम. हाँ जैसे आपने ऐसे शोल्डर दिखा हाँ, दिया, कित- ऐसे वो ऐसे खड़े हैं तो आपने पीछे से सेल्फी ले कितनी ली. off चीज़ है. अच्छा अच्छा आई वांट आप यानी लड़कों का क्या take है ऑफिशियली इस पे? बता रहे हो लेकिन आप शक्ल नहीं दिखा रहे हो. वाओ, नजर लग जाएगी. क्या बात है यार. यार अच्छा और बेसिकली हार्ड लॉन्चेस क्या आप उनका फेस दिखा दो तो हार्ड लॉन्चिंग. हाँ पूरा आप पोस्ट कर दो उनको. अच्छा सही यार. आई मीन आई एम अ पर्सन ऑफ प्राइवेसी. मैं इतना कोई पोस्ट ना करूं, लेकिन अगर शायद इफ़ आई एम विद समवन एंड इफ दे हैव एन इशू विद दैट तो शायद मैं कर दूं. आई वोंट माइंड. दैट्स दैट. सॉफ्ट लॉन्च नहीं करूंगा मैं, बहुत ऑफ चीज़ है वो. क्या तरीका है यार ये, आप किसी बंदी को बस ऐसे ही दिखा दें. अच्छा लास्ट जो कि मुझे भी नहीं पता था, आई एम श्योर हम में से किसी को नहीं पता होगा, कफिंग सीजन. That sounds so bad. Cuffing आई एम season. सॉरी गाइस, आई ऑप्ट आउट. I don't know what that is वैसे. Okay, so it's basically the time, usually winters, when people look for short-term relationships to come. ओके. All of this That's winter the thing. yeah. हाँ I ये mean, कुछ सर्दियों की I और think it's also called sweater weather. वो sweater weather का एक बड़ा pun intended चीज़ है. वो तो है ना 3rd of December, me in your sweater. or हाँ, something. it's something like that. उसके बाद फिर the neighborhood ने Gen Z talks हो गया. उसके बाद the neighborhood the ने whole एक गाना point भी of this निकाल दिया था, podcast, sweater Riva. weather. तो सबने जो है ना उसको दब के बना लिया. Okay, so my last question to you is, there's this thing in us, no closure is equals to no healing. So have you ever been left without answers? Yeah. Or have you ever left someone without Yeah. answers? Yeah, I did that back in 22, and then that same person did it with me in 24. Hi, it hits like a bitch, man. But yeah, that's it. I don't know how closures are supposed to be, because I think I was looking for one for 2-3 years, and I did not get one, and neither did that person जिसके साथ मेरा ये वाला पूरा एक situation चल रहा था. But then we started talking again, and then we got into a situation, and then she left.
no closure, no healing. So you didn't get your closure. हाँ, but I feel like अगर ये on and off बार बार होता रहता है so automatically closure हो जाता है because You get your answers. हाँ बेसिकली उसके बाद at one point देखें इस मैटर में ना सेल्फ रिस्पेक्ट आप खो देते हो बिल्कुल ही, बट at one point फिर it comes back to your head कि नहीं यार this is wrong to 100 different levels. ओके सो वी गोइंग टू रैप दिस अप, लेकिन उससे पहले शराज आप क्योंकि बैंड में हो तो आप हमें कोई भी गाना फॉर लाइक थोड़ा सा टाइम सुना सकते हो प्लीज़. वो आपने किसी के लिए लिखा हो या ओहो. किसी को कम्युनिकेट करने के लिए कुछ हो तो दैट वुड बी रियली नाइस. यार अच्छा do you want it to be personal? अच्छा एनीथिंग. yeah, I think if this is what is happening, so this is an unreleased song of Kamal, all right. I wrote this for a certain somebody, all right. This is yet to be released, like this is gonna be our 4th song. Give it a listen when it comes out, but yeah, I think I'll go with it. It's called Dil Kahe, right. Yeah, okay, let's give it a shot. शाम थी कोई जब मैंने उसे देखा, देख के मेरा मन मुझसे ये बोला, उसकी आवाज़ दूँ क्या मिसाल, उसकी आँखें करे बातें जब भी मैं उसको देखूं, मेरा दिल कहे. Thank you very much. Okay, this was great. Thank you. Okay. So now we're going to wrap this podcast up. Thank you so much for No worries. coming. And Okay, so I'll say the same thing. Thank you so much You're for coming. It welcome. was a really nice conversation, very fun, and thank you for sharing so much about your I'm life. It glad I was didn't really nice overshare, knowing but you. Thank you for having me. It means a lot to me. Thank you very much. No, thank you guys so are much for great coming. hosts. okay, so we're now going to end this podcast. This podcast is now going to be available on Spotify, Apple Podcast, and YouTube. See you guys in the next episode. Bye bye.